नाज़रीन नादा पी न्यूज हेडलाइंस के साथ में बशनाज। पहले दिन भर की अहम खबरों पर एक नजर। 100 घंटों के अंदर ही जैश क़यादत के खात्मे का दावा, बंदूक उठाओगे तो मारे जाओगे, जीओसी डिलन। खुदकुश हमले की तहकीकात में मुकम्मल ताउन की पेशकश, हमला किया तो पाकिस्तान जवाबी हमला करेगा, इमरान खान। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो बेबुनियाद, डिप्टी मेयर शेख इमरान का दावा। बीरू रियासतों में कश्मीरी मुसलमान गैर महफूज, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी, समाजी और कारोबारी तंजीमों का इजहार तशवीश। अब खबरें तफसील के साथ। जो भी कोई बंदूक उठाएगा उसे मार दिया जाएगा की खुली वार्निंग देते हुए फौज की 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों ने दावा किया है कि हलाकत खेज पुलवामा खुदकुश धमाके के महज 100 घंटों के अंदर ही वादी में जैश मोहम्मद की लीडरशिप का खात्मा कर दिया गया है। आला फौजी कमांडर ने कहा कि कश्मीरी माएं अपने बच्चों को हथियार डालने पर मजबूर करें क्योंकि हथियार न फेंकने वालों का अंजाम मौत है। इस दौरान आईजीपी कश्मीर एसपी पानी ने जम्मू कश्मीर में जंगजुओं की भर्ती अमल में नुमाया कमी वाक़ा होने का एतराफ करते हुए कहा है कि गुज़श्ता 3 माह के दौरान मिलिटेंट तंजीमों में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। जो कल का ऑपरेशन था स्पेसिफिकली, क्योंकि जो इंजरीज और जो हमारे मार्टरडम्स हमारे हुए हैं, इसके 2-3 मेन रीज़न हैं। फर्स्ट वन, वी डिड नॉट वांट द सिविलियन कैजुअलिटीज टू हैपन, and as you are aware, other than the one civilian fatal casualty which happened due to the terrorist fire in the initial stages itself, not a single civilian has been injured or killed in this encounter which lasted more than 17 hours, and that is the risk we took. We took it on our chin. And one more thing I would like to tell you, Brigadier Harbir Singh, who is also injured, he was on leave at home. When he realized that in the midnight the operation has started, he cut short his leave voluntarily, he rejoined, and he came back to Kashmir and went straight to the operational site. And he was leading his men from the front. So including DIG Amit Kumar, again he was leading his men from the front, and you would see the number of casualties of officers and the senior NCOs. It shows one thing, that our commanders were leading the operation from the front, and we were trying to achieve nil civil casualties, which has resulted in casualties to our boys. And I would like to assure you this will continue, but at the same time, since this question is asked, I also want to convey a message to the Awam. Please stay away from the encounter site during the encounter and after the encounter for your own safety, because during the encounter, during the crossfire, something can go wrong. And after the encounter, because of the leftover explosives, it may cause damage or injury or death to anyone who comes to that place. So it's my humble request to everyone, please stay away from the encounter site during and after the encounter. Gentlemen, Kamran was Chief Operations Commander of Jaish-e-Mohammed in Kashmir. He was a Pakistani, and he was being handled by the Jaish-e-Mohammed of Pakistan in conjunction with ISI and Pakistan Army from across the border. So he was the top commander of the Jaish-e-Mohammed, which carried out the 14th February convoy attack. So we have eliminated the top commander of the Jaish-e-Mohammed, which carried out the attack. Now whether who was involved, what was the role of each and every other player in that attack on the convoy, as I told earlier, is a matter of investigation. I would not like to share the operational details of that incident. Pakistan Army, Jaish-e-Mohammed Pakistan Army का ही एक बच्चा है। Jaish-e-Mohammed को पाकिस्तान आर्मी ही कंट्रोल कर रही है और ISI ही कंट्रोल कर रही है। और जैसे कि आपने कल जैश-ए-मोहम्मद का रिलीज भी देखा होगा, उन्होंने ये कबूला भी है कि उनका चीफ ऑपरेशंस कमांडर जो है इस हमले में मारा गया है। तो पाकिस्तान आर्मी का इन्वॉल्वमेंट इसमें 100% है, इसमें मेरे को और आपको किसी को कोई शक नहीं है। मीन कश्मीर कितने गाजी आए, कितने चले गए, सो द नथिंग न्यू इन इट, ऑल दिस एलियासेस कीप हैपनिंग एंड वी विल हैंडल देम, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट, लेट एनी गाजी कम। Now talking about in situation in Afghanistan and its impact on Kashmir, I think a lot has been written on it, a lot has been said about it. Coming down to the Kashmir Valley, we are very clear, anyone who enters Kashmir Valley will not go back alive in whichever way. Now the first part of the question जो आपने बोला कि harassment and all, वो propaganda है, and anyone can say anything without any proof. So I would like to again tell the Awam of Kashmir, इस propaganda का शिकार मत होइए। और दूसरी बात कि जो टेररिस्ट का जो मॉडस ऑपरेंडी का फ्यूचर में आप कैसे टैकल करेंगे, आई थिंक वो क्वेश्चन पहले आंसर हो गया है। जो भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं, जो भी हमारे टेररिस्ट की मॉडस ऑपरेंडी या टेक्निक्स हमारे सामने आती हैं,
हम लोग उसी तरीके से अपने मोडस ऑपरेंडी या अपनी तरतीब को बदलते हैं और टेररिस्ट को एलिमिनेशन करने के लिए प्लानिंग करते हैं। पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान ने पुलवामा खुदकुश हमले की तहकीकात में मुकम्मल ताउन की पेशकश करते हुए मुतनब्बे किया कि अगर भारत ने पाकिस्तानी सरजमीन पर कार्रवाई की तो पाकिस्तान इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, आवाज़ें सुन रहे हैं, मीडिया पे सुन रहे हैं, पॉलिटिशियंस की आवाज़ें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए। पहले तो कौन सा दुनिया का कानून किसी भी एक शख्स या मुल्क को जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बनने की इजाज़त देता है? ये कौन से इंसाफ के निज़ाम में है? दूसरी चीज़, आपका इलेक्शन का साल है और हम समझते हैं कि इलेक्शन में ये बड़ी बूस्ट मिलेगी कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। और उसके बाद बात किधर जाती है? हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग ख़त्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। ये किधर जाएगी बात अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि बेटर सेंस विल प्रिवेल। हम इसमें अकल करेंगे, हिकमत इस्तेमाल करेंगे और ये मसला जो आखिर में हल होगा, जिस तरह अफगानिस्तान में, ये भी डायलॉग और बातचीत से हल होगा। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स अंजुमन ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा हालात में बैरूनी रियासतों में ज़ैर तालीम तलबा और ताजरों पर हो रहे मजालिम पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि 22 फरवरी को मुलाजमीन एक रोजा हड़ताल करेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू और भारत के दीगर इलाकों में हजारों कश्मीरी मुसलमान जाने बचाने के लिए मसाजिद और दरबारों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। मौजूदा हालात में कश्मीरी मुसलमान जम्मू और भारत के दीगर शहरों में गैर महफूज महसूस करने लगे हैं। भारत में ज़ाहिर तालीम तलबा जान बचाने की खातिर तालीम अधूरी छोड़कर वादी वापस लौटने पर मजबूर हैं, जबकि कुछ यूनिवर्सिटीज ने कश्मीरी तालिब इल्मों का दाखिला मनसूख कर दिया है। सिलसिले में है या और मुख्तलिफ कामों के लिए हिंदुस्तान में है कि उनको इस वक्त कोई सेफ्टी नहीं है। हमें लगता है कि इस पे सरकार, चाहे हिंदुस्तान की सरकारें हैं, चाहे रियासती जम्मू और कश्मीर की सरकार है, कोई ठोस इकदाम नहीं उठा रही है। लिहाजा मुतफिका तौर जो एम्प्लॉय ज्वाइंट कमेटी ने फैसला किया है कि 22 तारीख को पूरी रियासत में हड़ताल रहेगी, मुलाजमीन पूरे हड़ताल पर रहेंगे। और आज मैं हिंदुस्तान के इंटेलिजेंसिया से कह रहा हूं, जो हिंदुस्तान में अमन पसंद लोग हैं, बिल्कुल हैं, ज्यादा तादाद हिंदुस्तान में अमन पसंद लोगों की है। इंसानियत के जो अलमबरदार हैं उनकी ज्यादा तादाद है, बिल्कुल है। या मैं आज यहाँ पे सिख कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो उन्होंने इस मुसीबत की घड़ी में एक रोल अदा किया। आज कहां पर हैं वो लोग? हमारे बच्चों को जो पढ़ाई के लिए हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में पढ़ाई के लिए गए हैं, उनको अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं, उनको एक तरीके और दूसरे तरीके से तंग किया जा रहा है। ये कहां की इंसानियत है? आज ये सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक अपने आप को कहने वाला मुल्क के लोग कहां पर हैं आज? ये बदकिस्मती की बात है कि हमको इस पे बात करनी पड़ती है, वरना उनका ये इंसानियत का मसला था, इसमें इंसानियत के जाविये से इसको देखते और इस मसले को, ये एक पॉलिटिकल मसला है और हिंदुस्तान के अवाम भी और गवर्नमेंट भी इस चीज को जान ले। हम हम कोई सियासतदान नहीं है, हम बिजनेसमैन हैं, हम अपना बिजनेस चलाते हैं और उसी लिए, लेकिन साथ में हम इंसानियत के अलमबरदार भी हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी आप देखें, अगर आप पिछले 30 सालों से देखेंगे, हमने कभी भी ऐसी चीजें यहाँ पे नहीं की हैं। और हमने हमारे स्टूडेंट या जम्मू में हमारे एम्प्लॉई है, वो तब तक
ड्यूटी के लिए नहीं जाएंगे जब तक उनको तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरफ से नहीं मिलेगा। The Kashmir Chamber of Commerce and Industry has convened this press conference to address issues arising out of the disturbances of the past few days. We have been watching with growing concern the role being played by our counterparts, the Chamber of Commerce and Industry, Jammu. The Jammu Chamber had issued a call for Jammu Bandh on the 15th of Feb 2019. Resultantly, the state witnessed incidents of violence and harassment of our people. Lives and properties of our people were put to grave risk. Delicate secular fabric, regional peace and brotherhood were threatened. Our people in Jammu, Dehradun and other places were inflicted with injuries and pain. Students were asked to leave educational institutions and college premises. Shops of our people were ransacked and set on fire. Vehicles belonging to them were set ablaze. Negative propaganda by print and electronic media fomented communal behavior. In case the state machinery fails to bring to justice people who have caused immense harm to our people at Jammu and other states, the Kashmir Chamber of Commerce and Industry has decided to work out other alternatives in consultation with other stakeholders, which may include snapping of trade ties with those who are bent upon destroying our nation politically, economically and socially. डिप्टी मेयर शेख मोहम्मद इमरान ने आज एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक न्यूज चैनल पर उनसे मुंसलिक वीडियो को बेबुनियाद और बनावटी करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस वीडियो की मुकम्मल छानबीन के बाद ही पता चलेगा कि असल मामला क्या है और ये वीडियो किसने और किस मकसद के लिए तैयार किया गया है। जो भी ये डॉक्टर्ड वीडियो है या जो ये न्यूज़ चैनल खुद कह रही है कि ये अनवेरीफाइड वीडियो चल रहा है, पहले तो मैं चाहता हूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रूलिंग है कि दे शुड हैव गॉट इट वेरीफाइड, जो भी इसमें प्रोसीजर वगैरह है, तो इट इज़ प्रॉपरली डॉक्टर्ड एंड आई वुड से दैट आई हैव रिटन द लेटर टू ऑनरेबल गवर्नर टू इनिशिएट इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड गिल्टी शुड बी पनिश्ड. I have contested elections against all odds. I have contested elections, I have dared the life-threatening boycott calls. And after that, if this is the way that we are going to be labeling every politician this way, I don't know whether what we are supposed to do. We understand that elections are near and these kinds of things are being done by the people you all know. We all know. I don't want to name them publicly, but yes, time will come. Investigation should, I have asked myself voluntarily for the investigation and inquiry so that things should be cleared. The thing, what has happened yesterday, unfortunately, on certain private news channels yesterday, it has maligned my image because I was positively going up politically, as you all are aware. I am here in front of you today. I have called you people because I wanted to, tell you that this doctored video will not tow me down, will not bow me down. I am still standing for my people. We have a lot of issues of our people. I don't believe in conventional politics. I am doing politics for my people. I will live for my people. I will die for my people. But I believe that this is stooping low. Well-crafted, doctored video. I will not budge to these things. I do have evidences today which I am going to share to you. मैं हमेशा reactions देता आ रहा हूँ. मैंने कभी एक्शन यहाँ से नहीं किया. मेरी इंजरी हुई, मैंने रिएक्शन दिया. मेरा बैंक का मसला उठा, मैंने रिएक्शन दिया. मुझे बोला गया कुछ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने हरकत हमारी एक कॉर्पोरेटर साहिबा के साथ की, मैंने रिएक्शन दी. देखिए, अल्टीमेटली these are the screenshots which I'll be sending to you also in their group where he asked session end करे नहीं करे, repeatedly what all questions you should ask Sheikh Mohammed Imran. These are the questions. Repeatedly, what all questions you should ask from Aqib Rinzu Shah and Latif Mir. Repeatedly, attack him, get up and attack him. This was an attempt to murder. And repeatedly, then he is asking Wajahat, what all questions you need to ask him. Repeatedly, in their group, Sheikh Imran planned, has what he is going to do. Ashraf Palpuri Saab, he is there on the corner. Another thing he is asking ki, कौन कौन बाहर आया, कौन कौन अंदर आया. These are his WhatsApp chats in his group. And whosoever corporator is there, the names are there, each and everything is there. Today it will be evident and crystal clear that these people are behind me.
काफी दिनों से ब्लेम गेम चलती जा रही है, इस पे रोक लगाया जा सकता है। 1913 लेटर्स मैंने लिखी हैं जिनमें कुछ प्रपोजल्स भी हैं। एसएमसी के हवाले से मैं आपको बोलूंगा कि एसएमसी का काम प्रायोरिटी है, ये ब्लेम गेम पास टाइम है। मैंने कभी भी प्रायोरिटी इस ब्लेम गेम को नहीं दी है। इनकी तरह मेरी वर्किंग देखिए, मेरे ऑफिस का फुटफॉल देखिए, फुटप्रिंट्स देखिए, मेरे शहर में जितने नाइट ऑपरेशंस देखिए, डे ऑपरेशंस देखिए। अगर इसके बावजूद आप बोलेंगे कि एसएमसी सफर कर रहा है मेरी वजह से, आई डोंट नो हाउ टू वर्क मोर। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू पीपल, आई एम गिविंग माई ब्लड एंड स्वेट to the SMC because I feel the pain of every Kashmiri. I feel what we are going through. I feel what our students are going through there outside the country. I have been awake all nights, trying my best that how to get them back, whatever in little capacity I can do. I have a lot more to say, but I don't want to blame that this officer did this, that officer did this, this is what is happening behind my back. No. Beyond SMC, I have been trying my best to work in each and every corner wherever I have the capacity and capability. So these WhatsApp, please, I'll share it. Please give me your numbers, whosoever numbers are with me, I'll send it to you. This is, the doctored video is the result of this attempt to murder to me, but don't worry, I will live only as much as is written in my destiny by my Allah. Neither you can make me live more, nor you can kill me before that. I firmly believe in that and I'll stand by that till I die. Thank you very much. इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। कल तक दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।